Dear students, welcome to Scientech Academy. This is Tanveer sir. ये आपका इंट्रोडक्शन टू लाइट विद द हिस्ट्री ऑफ लाइट चल रहा है, उसका ये पार्ट बी। तो मैंने अलहसन तक पढ़ाया था, नंबर 7 पे बताया था कि उनका स्टैंड क्या था, इनका व्यूज क्या था। विजन ओकस इन द ब्रेन रेदर देन इन द आईज। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट whose contribution in the field of light is highly precious. But till to date, what actually light is, remains mysterious. तो अब हम लोग चलते हैं, सैकड़ों साइंटिस्ट लाइट पे काम किए। अब यहाँ पे हम नंबर 8 पे जिस साइंटिस्ट को ला रहे हैं, जिनका नज़रिया, जिनका व्यूज़ कुछ डिफरेंट है, वो है, चलिए नंबर 8 पे हम रखते हैं क्रिश्चियन हाइगेन। ये बच्चों ये डच फिजिसिस्ट थे, यानी हेग में इनकी पैदाइश हुई। नीदरलैंड के रहने वाले थे। नीदरलैंड अब हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। तो he was Dutch physicist, mathematician, astronomer, polymath and the philosopher. Okay? अब यहाँ पे इनका जो व्यूज है बच्चों, वो क्या, हाइगन believed that light was made up of waves vibrating up and down perpendicular to the direction of the wave propagation. This is known as Huygens principle. क्या था? Huygens believed that light was made up of waves vibrating up and down. This type vibrating, ये wave। तो अब ये perpendicular to each other इस तरह से, ये up and down propagating in the direction of wave। ये direction of propagation of wave। तो इस तरह से ये प्रोपेगेट करता है, लाइक अ वेव, लाइक अ वाइब्रेशन। ठीक है बच्चों। तो हाइगन बिलीव दैट लाइट वाज मेड अप ऑफ वेव्स। तो ये एक नया चीज आया, वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। क्रिश्चियन हाइगन टोल्ड दैट लाइट फॉर्म्स व्हेन अ ल्यूमिनस बॉडी causes a series of waves or vibration in the ether. What is ether? Ether is an invisible medium filling all empty space between the objects. Thus in the year 1678, Huygens proposed that light is a wave or vibration or wave fronts. This is called Huygens wave theory of light. इनका नजरिया क्या था? That light is a wave or vibration. Light, ये Huygens wave theory of light. He told light is a wave or vibration or wave front। ये 1678 में हाइगन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया। लाइट इज अ वेव और वाइब्रेशन और वेव फ्रंट। हाँ तो बच्चों, इन 1690 हाइगन published his paper in 1690। Mr. Christian Huygens published a paper, यानी thesis। लिखा। He published a paper in French language।
published a paper thesis in French on light, namely treatise on light. Treatise on light. Yeah. In which he explained about his theory, that is wave theory of light, Huygens principle और Huygens wave theory of light. तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ कंक्लूजन जो निकल कर आया सामने कि यही कंक्लूजन आपका हो गया. कंक्लूजन क्या कि लाइट इज अ वेव और वाइब्रेशन और वेव फ्रंट. तो क्रिश्चियन हाइगेन जो थे वो 1629 to 1695 इनका ये ही वॉज बॉर्न इन 1629 एंड ही डाइड इन 1695. हाँ तो बच्चों, अब उसके बाद आते हैं सर आइजैक न्यूटन. 1643 1727. 1643 and 1727 he was an English physicist, mathematician and astronomer. तो न्यूटन का 3 मेजर डिस्कवरीज जो आप लोग जानते होंगे बच्चों. न्यूटन्स 3 मेजर डिस्कवरीज: स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट. न्यूटन्स 3 मेजर डिस्कवरीज. Newton's 3 major discoveries. Number first, spectral decomposition. ये सब भी आप लोग जानिए ताकि आपका जनरल साइंस भी ठीक रहे. नंबर 2, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड नंबर 3 में इनफाइनाइटेसिमल कैलकुलस. ये न्यूटन का 3 मेजर डिस्कवरीज है आपके सामने. नंबर 1 स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट, नंबर 2 यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड नंबर 3 इनफाइनाइटेसिमल कैलकुलस. That's why Sir Isaac Newton is known as father of classical physics, father of classical mechanics. His contributions on science of optics, technologies on lens, prisms, mirrors, telescopes and microscope. In a paper presented in 1672, in a paper presented in 1672, he announced his new theory on light. His new theory on light and color. Newton's new theory on light and colors. In 1672, he announced his new theory on light and colors, in which he proclaimed that light is a mixture of various colors. Light is a mixture of various colors having different refractivity, and demonstrated his theory in the famous prism एक्सपेरिमेंट. आप जानते होंगे प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, जिसमें व्हाइट लाइट पास कराया जाता है और 7 कलर्स उससे निकलता है. ठीक है, उससे 7 कलर्स आप लोग देखते होंगे जो विबग्योर के नाम से जाना जाता है. उसके बाद इन 1704 1704 में in 1704 he authored a book named Optics, not Optica. In 1704 he authored a book named Optics,
ऑप्टिक्स में जो इन्होंने स्पेलिंग लिखा था उसमें OPTICK हम लोग इसमें जो ऑप्टिक्स लिखते हैं वो ऑप्टिक्स इस तरह से लिखते हैं CS। ठीक है बच्चों। तो इन 1704 ही ऑथर्ड द बुक ऑप्टिक्स वेयर ही रिवील्स हिज पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। इसमें क्या लिखा? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? पार्टिकल नेचर, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। Newton proposed that light consists of corpuscles, an idea reflected in the division of light into photons today, which travel in a straight line with a finite velocity and possess energy. Newton's corpuscle theory fails to explain optical phenomena like इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो कंक्लूजन इसमें क्या निकल के आ रहा है बच्चों? कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ corpuscles, वेरी वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, सबल पार्टिकल्स। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ corpuscles और पार्टिकल्स। ये कंक्लूजन निकल कर आया। ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं थॉमस यंग, नंबर 10। थॉमस यंग ऑफ UK। ये 1773 टू 1829। ठीक है। ये 1773 में इंग्लैंड में पैदा हुए ब्रिटिश साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, ब्रिटिश फिजिसिस्ट। ओके मैन, he was also polymath. Mr. Thomas Young was also a polymath. In 1801, he performed an experiment. क्या था? नेमली डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वो बच्चों एक्चुअल में इस टाइप का था। मान लीजिए यहां से ये स्लिट है, ये एक होल है, यहाँ पे एक स्लिट है, यहां से लाइट पास कर रही है। ठीक है। तो ये लाइट पास करेगी यहां से, इस तरह से इंटर करेगी इसमें, ये स्लिट है। तो यहां से इस टाइप का वेव बनेगा, इस टाइप का, इस तरह से। ये हुआ आपको एक स्लिट। अब यहाँ पे न्यूटन ने लगा दिया था एक और स्लिट इस तरह से। ये न्यूटन कह रहे हैं, सॉरी, ये थॉमस यंग। यहाँ पर थॉमस यंग ने यही इनका डबल स्लिट, यहाँ से फिर लाइट इसमें जाएगी, उसके बाद इस तरह से लाइट पास करेगी। अब यहाँ से ये निकलेगा तो यहाँ पर एक इस तरह का ये हो गया, और दूसरा यहाँ से इस टाइप से ये वेव बनेगा। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि ये तो फॉर्मेशन ऑफ वेव्स हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वेव। तो यहाँ भी एक नई चीज निकलकर सामने आई। फिर वो नई चीज क्या, जो क्रिश्चियन हाइगन की थ्योरी थी कि लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव, वो फिर आ गया। थॉमस यंग ने भी यही बताया कि लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। In 1801, Mr. Thomas Young of UK performed an experiment that strongly inferred the wave-like nature of light. Double slit experiment established that light consists of waves. This experiment established
established that light consists of waves. ये ठीक है बच्चों। तो यहां पर भी कंक्लूजन क्या आया कि लाइट इज अ वेव। तो यानी क्रिश्चियन हाइगन सही थे और न्यूटन गलत थे। क्या ऐसी बात है? अभी आगे देखिए, उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट का व्यूज हम लोग जब देखेंगे, चलेंगे हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन तक। नंबर 11 पे लेने जा रहे हैं थॉमस यंग के बाद, वह है जेसी मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का क्या नजरिया था, उनका क्या व्यूज था लाइट के बारे में। हाँ तो बच्चों, ये नंबर 11 पर अब आते हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1831 to 1879। ये स्कॉटिश मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट थे, यानी स्कॉटलैंड के रहने वाले। In the year 1860 he gave the speed of light c. In 1860 he gave speed of light c. Speed of light c is equals to 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. ये स्पीड ऑफ लाइट। इन 1864 he gave electromagnetic theory of light. Electromagnetic theory of light. ठीक है बच्चों, he gave the theory of electromagnetism in 1864. Maxwell described light is a propagating wave of electric and magnetic fields, which is called electromagnetic radiation. In the year 1864, Maxwell demonstrated that electric and magnetic fields travel through space as waves in straight line path with the speed of light c. Okay? In the year 1887, Mr. Heinrich Hertz, यही हर्ट्ज साहब हैं जिनके नाम पे फ्रीक्वेंसी का यूनिट, एसआई यूनिट जो है हाइनरिच हर्ट्ज, इन्हीं के नाम पे, हर्ट्ज के नाम पे वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है बच्चों। इन द ईयर 1887 मिस्टर हाइनरिच हर्ट्ज experimentally confirmed the electromagnetic theory of light. ये तो मिस्टर जेसी मैक्सवेल ने ये थ्योरेटिकली इसको बताया, प्रूफ किया कि लाइट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और लाइट का नया नाम भी, यानी साइंटिफिक नेम ऑफ लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है बच्चों, तो ये हाइनरिच हर्ट्ज ने इसको प्रूव भी किया, एक्सपेरिमेंटली इसको कंफर्म किया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से। तो ये एक इस तरह से, अब चलिए ये एक डायरेक्शन मान लेते हैं, इधर हमारा y है और इधर हमारा ये z डायरेक्शन, ठीक है, z। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ कहा जा रहा है कि ये दो फील्ड से मिलकर बना है। एक इलेक्ट्रिक, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये, और ये हमारा ये बी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना, तो ये इस तरह से प्रोपेगेट करेगा, ऐसे वेव नेचर। और ये जो है, ये देखिए इसमें इस तरह से ये परपेंडिकुलर होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये, और यहाँ पर भी ये इस तरह से ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा। समझा? और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, ये एक्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेटिंग वेव या प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो बच्चों ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, इस डायरेक्शन में ये वेव प्रोपगेट करेगा, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, यानी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में वो प्रोपगेट करेगा। लाइट इज अ प्रोपगेटिंग वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, that is called electromagnetic radiation traveling at a speed equal to the speed of light c। तो इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं लाइट को? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आईज बिटवीन वेवलेंथ रेंज बिटवीन 400 नैनोमीटर। वेवलेंथ रेंज कितना होगा? वेवलेंथ रेंज बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। एक नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर is equals to 10 to the power minus 9 मीटर। ये इसका वेवलेंथ रेंज हुआ। ये लाइट का जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ रेंज इतना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ें। इतना इसका ये हुआ विजिबल लाइट का वेवलेंथ रेंज और फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 टू रेज टू द पावर 14 हर्ट्ज टू 8 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये हुआ फ्रीक्वेंसी रेंज। और आपका वेवलेंथ रेंज जो है, वेवलेंथ रेंज ये होगी आपको कितना? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये आपका ये रेंज होगा, वेवलेंथ रेंज और फ्रीक्वेंसी रेंज। किस चीज का? ये आपका विजिबल लाइट का, विजिबल लाइट। ठीक है, ये विजिबल लाइट का रेंज हुआ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सर्ट प्रेशर, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सर्ट प्रेशर एंड हेंस कैरी मोमेंटम डिस्पाइट ऑफ हैविंग नो मास। इसमें मास नहीं रहते हुए भी ये मोमेंटम कैरी करता है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सर्ट प्रेशर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सर्ट प्रेशर एंड हेंस कैरी मोमेंटम डिस्पाइट ऑफ हैविंग नो मास। ये देख रहे हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसको आप लोग अच्छे से देख लें, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें।
मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें ये गामा रेज से शुरू होता है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। यहाँ इसको इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ एनर्जी, गामा रे एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, गामा रे की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हाईएस्ट है, लार्जेस्ट। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, चूंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो यहाँ पे अगर हमारा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, आई मीन लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे इधर से जैसे जैसे हम लोग इधर से इस तरह से आएंगे, बढ़ेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे बच्चों एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उसका डिक्रीज करेगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। एनर्जी उधर, इधर से अगर उधर जाएंगे यानी रेडियो वेव से हम चलेंगे किधर, गामा रेस की तरफ, तो यहाँ से एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वो क्या होगा, इंक्रीज होगा और यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाएगा। तो गामा रे की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी और रेडियो वेव की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। तो इस तरह से यहाँ पे स्मॉलेस्ट हुआ इसका एनर्जी और फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का, और गामा रे का लार्जेस्ट। उसी तरह से यहाँ पे चूंकि हमने अभी बताया आप लोगों को कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ इसका कम होगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे जैसे रेडियो वेव की तरफ हम लोग आएंगे तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए, ये गामा रे के पास में इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 10 टू द पावर 22 हर्ट्ज, 10 रेज़ टू द पावर 22 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और इसका वेवलेंथ जो होगा, वेवलेंथ रेंज, ये सॉरी इसका फ्रीक्वेंसी रेंज, जो गामा रे की जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, वो 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 21 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हुई। जबकि रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 10 रेज़ टू द पावर 10 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। सिर्फ उसके बाद यहाँ पे चूंकि गामा रे के पास वेवलेंथ रेंज जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, 10 टू द पावर -13 मीटर टू 10 टू द पावर -10 मीटर, और जैसे जैसे हम इधर आएंगे इधर, तो यहाँ पे इसका वेवलेंथ लार्जेस्ट हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर -1 मीटर टू 10 टू द पावर 4 मीटर, ये वेवलेंथ रेंज हुआ। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। और एक चीज और आप लोग जानिए यहाँ पे कि ये जितना भी इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये सिर्फ विजिबल लाइट ही है, बाकी ये सारा जो है वो इनविजिबल है, ये इनविजिबल रेडिएशन है, यानी डार्क रेडिएशन हम इसको कह सकते हैं, हम देख ही ले रहे हैं उसको, ये इनविजिबल रेडिएशन है। और इतना में विजिबल लाइट सिर्फ इतना ही है, मतलब पूरा इंटायर यूनिवर्स की बात की जाए तो इसीलिए ये कहा जाता है डार्क मैटर की बात आ रही है। तो ये सारा जो है वो इनविजिबल स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये भी लाइट ही कहलाएगा, ये भी लाइट ही कहलाएगा। लाइट में लाइट ही का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है बच्चों। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो लाइट का है। तो लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, तो ये विजिबल लाइट को छोड़ करके ये जितना स्पेक्ट्रम है सब इनविजिबल है। और यहाँ पे ये विजिबल लाइट ये है। और एक मजेदार चीज और सुन लीजिए यहाँ पे कि अगर इसको ये पूरे इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यहाँ से इस तरह से, यहाँ से, और ये रेडियो वेव से यहाँ से इसको पूरे को अगर हम 2500 माइल्स मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक
इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर हम 2500 माइल्स मानते हैं तो ये इंटरेस्टिंग बात आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये जो विजिबल लाइट है ये हमारा ये जो हमारा विजिबल लाइट का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये ओनली 1 इंच ये सिर्फ 1 इंच है। ये टोटल को हम मान रहे हैं कितना, इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक spectrum is to be considered as 2500 miles, then the visible light range will be only 1 inch. Visible light spectrum is so small that if we consider entire electromagnetic spectrum to be as around 2500 miles, then the visible light fraction would be just 1 inch. It is within 1 inch that we see high definition color of this world. It is within 1 inch. It is within 1 inch, बच्चों, that we see high definition color of the world. High definition यानी HD. High definition यानी HD color of the world, of this world. अब देखिए, ये नेचर की जितनी सारी खूबसूरती है वो सिर्फ ये 1 इंच में, ये विजिबल लाइट है जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, आसमान को देख सकते हैं, सूरज को देख सकते हैं, गार्डन को देख सकते हैं, प्लैनेट्स को देख सकते हैं दूरबीन से। तो जो कुछ भी जितना भी कलरफुल वर्ल्ड को हम ये जो हमारा ये वर्ल्ड है, कलरफुल वर्ल्ड जिसको हम देख रहे हैं, इट इज विद इन 1 इंच. इट इज वेरी वेरी हाईली सरप्राइजिंग फॉर अस टू नो दैट इफ द एंटायर स्पेक्ट्रम इज टू बी कंसिडर्ड एज 2500 miles, then in comparison to this our visible light spectrum would be only and only 1 inch. And in this 1 inch, we see a high definition color of this world. Okay? तो इस तरह से ये आपका ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का ने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में, और लाइट इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which are perpendicular to each other, and it is a propagating wave. Electromagnetic is a propagating waves, and it flows and propagates in the direction of wave propagation, in the direction of propagation of the wave. तो इस तरह से, और यहाँ हमने विजिबल लाइट का रेंज भी लिख दिया है, विबग्योर V for violet 400 नैनोमीटर टू 420 नैनोमीटर, इस तरह से रेड का 650 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. तो यहाँ रेड का जो वेवलेंथ है वो हाईएस्ट है यानी लॉन्गेस्ट, और वायलेट का लोवेस्ट. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब आज हम लोगों ने जाना कि लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव, लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो घूम फिर कर बात वहीं पहुंच जा रही है कि लाइट इज अ वेव, और सिर्फ अभी तक न्यूटन ने ही कहा था कि लाइट इज अ पार्टिकल. अब आगे हम लोग देखेंगे, अभी तक तो हम लोगों ने 11 साइंटिस्ट का व्यूज, उनके स्टैंड्स को जाना, उनके नजरियात क्या थे उनको हम लोगों ने पहचाना. अब इसके बाद अब हम आएंगे, अब चलेंगे जर्मनी घूमने टहलने, जहां जर्मनी से हम लेकर आएंगे मैक्स प्लांक को, और उसके बाद आएंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन, और उसके बाद कुछ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो 2022 में नोबेल प्राइज मिला वो क्वांटम इंटेंगलमेंट पे, वो क्या चीज़ है. ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आएगा ये हमारा ये पार्ट सी था, इंट्रोडक्टरी क्लास का हमारा लाइट का, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट विथ इट्स हिस्ट्री, ये पार्ट बी. अब इसके बाद हम लोग का पार्ट सी शुरू होगा. आप देख रहे होंगे
कि इसमें कितने सारे कंसेप्ट आ रहे हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो लाइट को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे और उसको समझने में डिफिकल्टी होगी। मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि लाइट इज लाइट, मतलब लाइट बहुत इजी है। आई एम नॉट गोइंग टू से यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल साइंटिफिक एकेडमी, बट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट यू मस्ट वॉच आवर फर्स्ट वीडियो on which was made on light, that is introduction of light with its history। तो आप जाइए और इससे हमारा पहले वाला जो वीडियो है उसको जरूर वॉच कीजिए और बार बार वॉच कीजिए और बने रहिए तनवीर सर के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच।